ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਤੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੋਚੂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੀਗਲੀ ਸਾਈਨ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੇ, ਡੋਨਰ ਮਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ कर रहे हैं, आपकी तरफ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇशन नहीं कर रहे। तो मेरे गले में लॉकेट था, लॉकेट को देख के कहते आप अब भी सरसा जाते हो। मैंने कहा छोड़ा ही नहीं। ऑपरेशन हो गया। कहते करमजीत जी नारा लगाओ, शुक्र मनाओ कि हम भी डेरे जाएं। वो डॉक्टर मुझे मजाक करने लगे, पर मैंने कहा सतगुरु ने अगर तेरी ज़िंदगी बख्श देनी है ना तुझे, कोई नहीं मार सकता, चल चलते हैं। कहते डेरे वाले ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आज हम कुछ ऐसे मेहमानों से आपको मिलाएंगे जिससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट की है उन्होंने जी। मिलते हैं आज के मेहमान से जी। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई। मैम क्या नाम है आपका? माय नेम करमजीत। करमजीत। हाँ जी। करमजीत जी, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? +2। आप क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन सर। इलेक्ट्रिशियन। जो डेरा सच्चा सौदा है, इससे आप कब से जुड़े हो? मेरा पूरा परिवार पिता से कम 1970 में जुड़ा जी। उसके बाद परिवार फैमिली ऑटोमेटिक सतगुरु की रहम से जुड़ती गई जी। करमजीत जी, जिमें कि तुसी जानते हो, डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स है वो गुरु जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, किडनी डोनेट हो गई, ब्लड डोनेट हो गया, अखां दान हो गया। मैं मेरी मम्मी डैडी है नहीं, पर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਮਲੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ? ਬਲੱਡ ਮੈਂ 17 ਵਾਰੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਡਨੀ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ DMCP ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ। 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰਾ PGI 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਜੀ ਰੋਨੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਤੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੋਚੂ। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹਮ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੋ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੀਗਲੀ ਸਾਈਨ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੇ, ਡੋਨਰ ਮਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਕਰਮਜੀਤ जी जितना तुसी जितना दसिया कि भाई जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ठीक है, तो जब मना कर दिया तो फिर वो एग्री कैसे हुए फिर बाद में? जब आपने बोला, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अब डोनर मरे या फिर पेशेंट मरे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर इस ये तो बहुत एक खौफ पैदा हो जाता है कि भाई किसी की भी लाइफ हो सकता है, दोनों की लाइफ चली जाए। तो इस टाइम पे तो क्या सिचुएशन थी घर में, कैसा माहौल? पूछो मत। सारे गुरु ही कह रहे थे तू जाने तेरा काम जाने। मेरे में ही सतगुरु ने इतना हौसला दिया हुआ था। मेरा सतगुरु कभी गलत नहीं करता, वो अच्छा ही कराएगा मेरे से। वाकई ही सतगुरु ने आज तक मेरे से अच्छा ही कराया, गलत होने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। जी जी। प्राउड फील करती हूँ मैं जी 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 कि मैं उसकी बेटी हूँ। जी। तो फिर हाँ दूसरी बात एक और करिश्मा देखने को मुझे वहाँ मिला। जैसे ही किडनी डोनेट होगी, बेहोशी में ले जाया गया मुझे। वो पूछते हैं बेहोश करने से पहले कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरे गले में लॉकेट था, लॉकेट को देख के कहते आप अब भी सरसा जाते हो। मैंने कहा छोड़ा ही नहीं, मैं पढ़ी वहाँ हूँ, रहती वहाँ हूँ, खाती पीती वहाँ से हूँ, मैं छोड़ूंगी भी नहीं। ना ही टाइम लेके आई सतगुरु ऐसा कभी। ऑपरेशन हो गया, कहते करमजीत जी नारा लगाओ, शुक्र मनाओ कि हम भी डेरे जाएं। वो डॉक्टर मुझे मजाक करने लगे। मैंने कहा ठीक है, दुआ करते हैं सतगुरु आपको भी जोड़े। जैसे ही ऑपरेशन हुआ मुझे बड़ी शांति भी मिली। मुझे ये भी हुआ कि किसी की जान बचाई करमजीत ने। एक और बड़ी बात मुझे देखने को मिली। जी। मेरे ब्रदर को बोला गया कि आपको 1 महीना आईसीयू में रखा जाएगा। जी। ऑपरेशन के 12 घंटे बाद मुझे होश आता है। उधर मेरे ब्रदर को नहीं है होश आया, तो डॉक्टर मुझे उठाते हैं, कहते उठो करमजीत आपका ऑपरेशन हो गया। मैं उठ गई। उठने से पहले उठा तो जाते ही नहीं, टांके होते हैं है ना। कहते अपने आप उठो, आप ये सपोर्ट दे दिया आपको, इसको हाथ लगा के उठो। मैं सपोर्ट लेके अपने आप उठी। फिर खड़े होने में भी दिक्कत होती है, टांके होते हैं। फिर कहते आपको हौसले वाली बात बताते हैं। जी। बताओ। कहते आपका ब्रदर बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। कहते आप मिलना चाहोगे, आप पहले ब्रश कर लो, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा होता है। ब्रश किया, मैंने कपड़े चेंज किए। इतनी रहमत देखने को मिली वहाँ मुझे लगा मेरा ब्रदर कभी बीमार ही नहीं हुआ। क्या बात। और मुझे रोने के सिवा कुछ नहीं आया वहाँ। कि हम सोचते नहीं वो हमारे लिए इतना कर देते, ये तो हमारा कोई कर्म होता है। बिल्कुल। कि आ जाता है सामने, लेकिन वो हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए फादर को फादर ही नहीं, गुरु ही नहीं, क्या कहें उसके लिए अल्फाज ही। सही बात है दर्शकों, जिसकी ज़िंदगी बख्शी हो, एक ज़िंदगियाँ नहीं, 2 ज़िंदगियाँ सेफ़ हों, सेफ करी हों, तो वो गुरु के साथ एक माँ बाप का भी रोल निभाता है। तो ऐसे गुरु के लिए तो शत नमन ही कह सकते हैं। तो करमजीत जी, जैसे आपने किडनी से सारा ट्रांसप्लांट किया,
तो फिर घर वालों का और रिश्तेदारों का क्या रहा, आपके क्या कैसे उन्होंने रिएक्शन था उनका? वो कहते अगर कर्मजीत ने किडनी दी तो इसकी लाइफ है, अगर और कोई देगा ना कोई भरोसा नहीं है ये कब चला जाए। अच्छा। बस उसको इतना ही बिलीव था अपने सतगुरु पे कि कर्मजीत एक हर टाइम प्रसाद खाती है, लंगर खाती है, बिलीव करती है अपने सतगुरु पे। उसको यही भरोसा है कि हाँ कि वो अगर चीज़ दे, किसी को ब्लड लगेगा वो गुरूर ही करेगा। जी जी। जैसे मजाक करते होते अगर किडनी चलेगी तो कहते कर्मजीत की ही चल सकती है, औरों की तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते। ये विश्वास था उनको। जी जी। हाँ। तो फिर ब्रदर से जब मिले तो फिर कैसा बात हुई, कैसे लगा? वो कहता था अभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी लाइफ का स्टैंड कुछ और था, उनका दुनियादारी में था। वो चाहते थे कि हम सेवा के मामले में कर्मजीत को हम डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, सेवादार हूँ। जी जी। वो यही थी कि हमारी तरफ से कोई परेशानी ना आए, कि इसकी सेवा में कोई अड़चन आ जाए, बस। तो उसका रिएक्शन तो पूछो ही मत। वो कह रहे थे धन्य है तेरा गुरु, तो धन्य है तुम। हमारे रिश्तेदारियों में से ना सारे ही पीछे हट गए, सारे ही, क्योंकि खर्चे ही बहुत होता था। बंदे को ये लगता है पता लेने जाएंगे हमारे से पैसे भी ना मांग ले, हेल्प भी ना मांग ले, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि लगातार एक ही पेशेंट को टाइम देता रहे। जी जी। सारे को ही पता है, आपके घर में कबीलदारियाँ हैं ना, सभी को होता है कि हम टाइम नहीं दे पाएंगे, मांगेंगे, पैसा मांग लेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हमने ये शिक्षा भी ली वहाँ से कि रिश्ते में अगर देखा जाए, एक बहन भाई के लिए चल सकती है, माँ बाप के लिए चल सकती है, और मेरी तो लाइफ ही सतगुरु के लिए है, सारी दुनिया ही बहन भाई है। ठीक। सोचा ही ये किया। तो मैं मेरी ही तरफ से तिथि की रहम कराने वाला तो सतगुरु है बंदे से, है ना। मेरे ब्रदर को मेरे हौसले से जिंदगी रही। जी जी। वो टूटा नहीं, बाकी सारा परिवार टूट गया। जैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सारा ऐसे बैठ के जैसे कई बंदे मरे हों इनके घर में, मादम छा गया एकदम। पर मैंने कहा सतगुरु ने अगर तेरी जिंदगी बख्श देनी है ना तुझे, कोई नहीं मार सकता, चल चलते आप। चलो, ब्रदर के लिए तो आपने इतना बड़ा त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। क्या ये अगर दूसरा कोई ब्लड से अलग होता तो क्या भी यही भी फिर भी यही आपका जज्बा रहता? उसकी भी बात बता देती हूँ सर। डॉक्टरों की मीटिंग होती है वहाँ, मैंने 4 साल स्ट्रगल किया, कभी कोई फॉर्म भर, कोई टेस्ट ले, कभी कोई कहीं साइन करवाओ। मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया। जब मेरे ब्रदर को जवाब दे दिया गया, मैं अकेले में डॉक्टरों की टीम को मिलती हूँ अंदर जाकर। मैंने कहा मेरा काम सारा हुआ पड़ा है, आप किसी और को दे दो, मेरा ब्रदर नहीं बचने के लायक है। तो क्योंकि अगर मैं होर के लिए प्रोसीजर तैयार करूँगी, उसके लिए भी इतना टाइम ही देना पड़ेगा मुझे। बेटर है किसी और की भी जान बचे, अगर मेरा ब्रदर नहीं बच पा रहा। तो कहते उन्होंने फिर ये सोचा एक ट्रायल है आपका। मतलब आपने ये कह दिया उनको, डॉक्टरों को, जो मैं समझ पाया आपसे, कि भाई अगर मेरा ब्रदर ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं बच पा रहा, तो आप मेरी किडनी किसी दूसरे को पेशेंट को दे दो, उनकी जान बचे। चलो कर्म है उसके, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आगे उसकी किस्मत। जी जी। उस अगर उन्होंने यही सोचा कि डोनर का इतना ख्याल है तो क्यों ना इसका ट्रायल ही लिया जाए। तो ट्रायल लिया गया मेरे ब्रदर का। जी जी। चलाने वाला सतगुरु था। ठीक ठीक ठीक। यही सोचा। तो ये तो वाकई में बहुत ही मतलब एक बड़ी बात है। तो डॉक्टर्स खुद आपके साथ थे सारे, तो डॉक्टरों के साथ लड़ी भी एक बात में। अच्छा। जब उनको जवाब दे दिया गया कि इसकी किडनी इसको लगेगी नहीं, एक टेस्ट के पीछे। आपके ब्रदर मतलब आपकी किडनी आपके ब्रदर को नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, कहते ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी इसको। अच्छा जी। कोई DSC टेस्ट होता है, वो कहते मैच नहीं कर रहा। अच्छा जी। क्योंकि जब जिस बंदे ने मेहनत करी है उसको पानी फिरता दिखे ना, तो बंदा कड़क जाता है। गुस्सा आ जाता। तो मैंने गुस्से में बोला उनको, 4 सालों से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, आप फिर पहले बता देते। DSC टेस्ट में क्या आज से 6 महीने पहले लिया गया। सही बात। मेरे ब्रदर का 6 महीने पहले। आज मुझे लास्ट में बता रहे हो कि इसका ये टेस्ट मैच नहीं कर पा रहा। मैं वहाँ से मैं बड़ा स्ट्रगल करती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं फ्री हूँ वहाँ। तो आप कहते घबराओ मत,
हो सकता है आपका ऑपरेशन ही हो जाए, आपने ही मेहनत की है। जी जी जी। हाँ, इसी बात की वो भी एक था, कहते सतगुरु तो कहते डेरे वाले ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੋ ਪਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਲਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ठीक ठीक। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी बहुत कम था, जैसे उनके जो हाँ। टेस्ट वो मैच नहीं हो रहा था, हाँ जैसे जी, उनको लग रहा होगा कि भाई कहीं हम पे ही ना पड़ जाए, जब आपको पता है टेस्ट नहीं मैच कर रहा तो क्यों करवाए, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं हौसला छोड़ चुके होंगे। जी जी। तो फिर जब चलो जो सत्संगी डॉक्टर है वो तो चलो उसके तो लिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं उसको फील हुआ, जो दूसरे डॉक्टर होंगे जो नॉन सत्संगी थे वहाँ पे पीजीआई में, उनको जब ऑपरेशन जब आपका सक्सेसफुल हुआ, आपके ब्रदर का भी सक्सेसफुल होगा, उनके क्या था उनका रिएक्शन, वो क्या कहा अभी पहले? वो यही चीज़ बताते थे, आपके ऊपर आपके बाबे दी रहमत। कुछ पंजाबी सी ਉਹਦੇ 'ਚ, हाँ जी। कुछ हरियाणवी सी, कुछ बंगाली भी सी। आपके ऊपर परमात्मा की रहमत है, आपके ऊपर बाबे की रहमत है, आपके ऊपर गुरु जी की रहमत है। ये सब ने ही सतगुरु के ही गुण गाए। मुझे बड़ी ये चीज़ महसूस हुई कि मुझे मेरे सतगुरु की वाह करने को सुनने को मिली, अपने गुरु का नाम रोशन करने हाँ, का मौका मिला। मौका मिला जी जी जी। कि वो मेरे से करवाया। बस मुझे इतना का अफसोस है कि मुझे घर में देनी पड़ी। हाँ। बस और कुछ नहीं। जी जी। अगर बाहर देती तो शायद पता नहीं। हाँ। तो ये वाकई में घर वालों में भी दर्शकों को बताना चाहूँ, किडनी तो वैसे कोई अपना बाल नहीं कोई देता। आज का जो इतना गर्जी समय चल रहा है कलयुग का, तो अपने घर में ही ये देना बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने बताया आपका जज्बा तो आपके सभी के लिए था, आपने तो जैसे डॉक्टरों को बोल ही दिया था कि आप अगर आपके ब्रदर का तो ऑलरेडी सारा कुछ डैमेज हो ही चुका है, अगर वो नहीं बच पा रहे तो आपकी किडनी दूसरे किसी पेशेंट को दे दे ताकि उसकी जान बच जाए कम से कम। तो ये वाकई एक लड़की होते हुए आपका मतलब हम जो हमारी टीम तो हमारे दर्शक हम तो सल्यूट ही करते हैं आपको कि जो इतना बड़ा आपने कदम उठाया और अपने गुरु का नाम रोशन किया। और जी अभी चलो फादर डेज पे आप अपने गुरु फादर को क्या कहना चाहोगे? गुरु फादर को यही कहूँगी, सतगुरु से यही अरदास करूँगी, मालका वो काम करवाना जिससे मैं आपका कभी शुक्राना ना भूलूँ, आपकी दास बन के रहूँ, आपकी हर टाइम सेवा करूँ, आपको ही चाहूँ, आपको ही देखूँ। बस ये ख्वाहिश है कि मैं उसका दिल से कभी शुक्राना कभी ना बोलूँ। बस यही अरदास रहती है हर टाइम। तो दर्शकों ये वाकई में एक अजूबा है कि एक लड़की होते हुए करमजीत ने अपने ब्रदर को किडनी देके, जो कि एक पीजीआई की तरफ से डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था और उनका सब कुछ किडनी वगैरह डैमेज, दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी। तो आज उन्होंने अपनी किडनी देके एक गुरु का तो नाम रोशन किया ही किया, और एक फादर डे पे उनको एक याद में अपना उनका नाम रोशन किया है अपने गुरु का, और जिसे वो गुरु पिता कहते हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा दर्शक है जो इन चीज़ों से, जो ऐसे वेलफेयर काम कर चुका है और वो अपना इंटरव्यू देना चाहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी।